أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ तमाम ऑनरेबल मेंबर को और लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को और बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट सबके अफसर आए हुए हैं, खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं अपना तारफ़ करा चाहूँ ताकि सब अपना अपनी तारफ़ करा दें तो पता लग जाएगा। पीर अशरफ सूद मेरा नाम है। मैं 138 PP से MP हूँ और चेयरमैन इस कमेटी का हूँ। ज़िशान रफ़ीक, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। बिलाल यामीन MPA PP6 मरी से। हसन नस्करी जी PP248 MPA। नवीद असलम लोधी MPA PP201 साहिवाल। Assalamualaikum sir, I'm Thundar Shah, Special Secretary Finance Department. रज़ा उज़गन, Additional Secretary Finance Department. Sir, Mohammad Arshad sir, Special Secretary Local Government. Arslan Ali, Deputy Secretary Local Government. जावेद करीम, रिपोर्टर। हसन जुमा सर, Assistant Secretary Committee पंजाब असेंबली। मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन लॉ डिपार्टमेंट। नवीद अशरफ MPA जी PP50। अहमद इकबाल MPA PP54 नारोवाल। नदीम कुरैशी जी मुल्तान से रुकन असम्बली हूँ जी। नईम अख्तर हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटीज थी। खुरम वेलिद जी, पार्लियामानी सेक्रेटरी बल्दियात। अच्छा, उस दिन कौन सी हम 139 तक पढ़ लिया था? 138 138 से शुरू करें आज। सर शुरू करें सर। 138 सर। जी 138 sir, General Rules of Conduct. The elected representative, chief officer, and servant of the local government shall act honestly, fairly and transparently and exercise powers with due care and diligence. 139 sir, conflict of interest. 1. For the purpose of chapter, an elected representative, chief officer, or servant of the local government or any other relevant person shall be deemed to have conflict of interest in respect of a contract, proposed contract, or any other matter to be discussed or decided by that local government, council, or any of its committee or subcommittee, as the case may be, of which he is a member if a. he or any of his immediate relative or his employer or employee in relation to that contract, proposed contract, or any other matter 1. would receive or have reasonable expectation of receiving a direct or indirect pecuniary or some other benefit, share or interest, or 2. would suffer or have a reasonable expectation of suffering a direct or indirect pecuniary or some other detriment, or 3. could be reasonably perceived as receiving a direct or indirect pecuniary or some other benefit, share or interest, or suffering a direct or indirect pecuniary or some other detriment, or B. he has professionally acted in relation to that contract, proposed contract, or any other matter on behalf of any person having therein such share or interest as aforesaid, or C. he is of the opinion or could be reasonably perceived to have such opinion that the nature of interest in the contract, proposed contract, or other matter is such that it may conflict with the proper performance of his public duties in respect of that contract, proposed contract, or other matter. 2. no person shall be deemed to have conflict of interest in a contract, proposed contract, or any other matter for the purposes of this action if his interest arises solely due to his being a voter, local resident, or taxpayer to the local government. 140 is a duty to abstain from proceedings in case of conflict of interest. पढ़ लेने ना, फिर रह जाएगा। जा रहे हैं अभी तो बहस तो कोई नहीं थी।
बीच में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए। कितने सेक्शन रह गए हैं बिग साहब? सर सेक्शन तो अभी सर को 50 के करीब हैं सर। वाकई ये रिपीट हो रहे हैं सर, जनरल नेचर के ही हैं ये चैप्टर। अगर हम अगले पे चले जाएं सर तो उसमें कोई काम की चीज़ें हैं, ये तो सारे प्रोटोटाइप से ही हैं सर। ये वाला चैप्टर मिसकंडक्ट क्या होता है, ड्यूटी अब्सटेन क्या होता है, ठीक है, ये तो प्रोसीजरल है ना। हाँ जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें सर। 143 पे आ जाते हैं सर। Supervision of local governments 143. One has said the Chief Minister may from time to time give policy directions and fix objective for the effective, transparent and efficient undertaking of functions by a local government. 2. The Minister may, by a general or special order, direct a local government to take any measure in the public interest where situation demands immediate action. 3. The Secretary shall exercise supervision and general control over the local governments to ensure that they act in the public interest and perform their functions strictly in accordance with the provisions of the Act and all other relevant laws for the time being in force. 4. The Secretary may direct Office of Directorate General Inspection and Monitoring to probe into any matter relating to functions of the local governments or conduct of employees of the local government service, local council service and Directorate General and submit a fact-finding report with specific recommendation to deal with the matter. 5. The Secretary, with the approval of the Minister, may issue standing instructions on general matters relating to work of local governments, which shall be consistent with the Act and rules. 6. The Secretary may issue an advice on general matters relating to work of local governments, which shall be consistent with the Act and rules. 144 सर, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, ये भी सर बड़ा जनरल सा ही है कि पावर कॉल करने का इख्तियार है सर। इसको भी अगर कहें तो स्किप कर देते हैं सर। अगला कमीशन है 145 है सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट कमीशन। 1. Soon after the commencement of Act, Government shall constitute Punjab Local Government Commission. 2. The Commission shall consist of a Minister as chairperson, B. 6 members of Provincial Assembly of Punjab nominated by Speaker of Punjab Assembly in consultation with leader of political parties in proportion to the seats held by political parties in the Punjab Assembly. C. Secretary as Secretary of the Commission. D. Secretary Government of Punjab Law and Parliamentary Affairs Department. And E. 5 expert members including 2 women to be nominated by the Chief Minister in terms of Section 148 of the Act. 3. In case of absence of minister for any reason, the members shall elect one of the members present at the meeting to be chairperson for such period. सर आगे वाले भी सर ये सारे प्रोटोटाइप हैं सर, कोई खास चीज़ नहीं है सर। इसको भी अगर कहें तो आप स्किप कर देते हैं सर। सिर्फ आगे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है सर, वो हम कर लेते हैं सर, पढ़ लेते हैं। 150 सर। 1. Without prejudice to other provisions of the Act, Commission shall A. Steer the implementation of the Act and its transition. B. Remove hindrances for the local government to discharge its functions under the Act. C. Ensure prescription of subordinate legislation. D. Recommend amendments in the legislation and subordinate legislations. E. Conduct annual and special inspection of local governments and submit its report to Chief Minister. F. Conduct an inquiry by itself or through any other government entity about any matter concerning a local government or a defunct local government. G. Resolve the dispute between any department of the government and a local government or between 2 or more local governments. H. Probe into the matters referred to it by the government, Chief Minister, Minister, Member of Provincial Assembly of the Punjab, Secretary or a Chief Officer and give its decision on such matter. यहाँ पे हेड हमने ऐड करना था, वो हमने सर कर दिया हुआ सर, ये पहले डिस्कस हुआ था। I here conduct social and performance audit of a category of local government or a defunct local government on the basis of specific performance indicators through a third party and publish the report of such audit. J. Submit an annual report on the overall performance of the local government to the Chief Minister and Provincial Assembly of the Punjab. K. Take cognizance of violations of law and rules by local government or defunct local government. L. Hear and decide appeal against the rent assessed by Rent Assessment Committee under subsection 10 of section 99. एक सर और आपकी डायरेक्शन थी सर कि जो अनफेयर टैक्सेस के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन है वो भी कमीशन में आए, तो सर वो हम एक ऐड करके सर आगे एल के बाद एक हम ऐड कर देते हैं सर, तो वो वाली भी इधर आ जाएगी सर। नोट कर लेना सर। उसके बाद सर आगे भी सर सारी वो रूटीन वाली सर चीज़ें हैं सर, कोई इसमें प्रोसीजरल चीज़ें, इख्तियार, कमीशन का इख्तियार, सिविल कोड का इख्तियार, तो सब ने कोऑपरेट करना है सर। आगे सर ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है सर 156 लोकल डेवलपमेंट प्लान सर।
ये भी सर सारी वही प्रोटोटाइप्स ही हैं जिस तरह सर ये पिछले तमाम एक्ट्स में होते हैं सर कि कौन कौन देगा, एनुअल डेवलपमेंट प्लान कैसे बनेगा, एक लॉन्ग टर्म प्लान कैसे होगा। इसको भी अगर कहें तो सर मैं स्किप कर देता हूँ। सर आगे म्यूनिसिपल ऑफेंसेस एंड देयर कॉग्निजेंस, उसके ऊपर सर आ जाते हैं सर। वहाँ पे अगर कोई कमी बेशी करनी है सर वो देख लें सर। 160 है sir offences, punishments and their cognizance. Subject to any other law for the time being in force, the offences specified in 7th and 8th schedule shall be liable to punishment by way of imprisonment, fine, seizure, forfeiture, confiscation, impounding, and such other penalties as are provided in the Act. 2. If a person commits an offence specified in Part 1 of 7th schedule, such person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 500,000 rupees, or with both, and where an accused was directed by inspector for immediate discontinuance of the offence, the court may impose a further fine which may extend to 50,000 rupees for every day for the period the accused has persisted in the offence from the date of its commission. Part 2 of second schedule, उसके अंदर सर ये सज़ा कम होकर 3 साल हो गई है सर और जुर्माना 100,000 हो गया सर। और पार्ट 3 ऑफ जो 7th schedule है सर उसके अंदर है सर 6 months और फाइन अप टू 25,000 रुपीज़ सर। और उसके बाद सर 8th schedule है सर, such person shall in the first instance be liable to fine by issuing a ticket specified in 9th schedule, and where an accused repeats offence within a period of 3 months for which the accused was subjected to fine, he shall be liable to same punishment as provided in clause C. सर उसके बाद सर आगे इसमें सिर्फ एक सर चीज़ है 4 के अंदर सर, जो पुलिस स्टेशन के अंदर FIR होती है सर, इसमें एक इन्फोर्समेंट स्टेशन ऐड हुआ है सर। बाकी ये पिछले लॉज में सर सेम ही है पूरा चैप्टर। तो क्या सर वो 4 के अंदर है ना सर, 4 में सर आ रहा है जहाँ पे कि shall be cognizable and information in this regard shall be forwarded to officer in charge of a police station or enforcement station by the inspector after approval from the chief officer. यानी FIR कराने की 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, एक तो ये कि पुलिस स्टेशन में हो जाए, दूसरी सर पैरा के जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ पे हो जाए। नहीं वो पैरा के उसमें आएगा कि नहीं सर आगे एक स्पेसिफिक आ रहा है सेक्शन, वो भी मैं ऐड करता हूँ सर जहाँ पे चेंज है, बाकी तो सारा वो सेम ही है। वो कौन सा वाला है? लेकिन अब ये इन्फोर्समेंट की जो चीज़ है ये चलेगी पैरा के पास, तो पैरा का इसमें 107 सर ये सर 167 है सर, जिसमें चेंज है, बाकी सारा सर वो कॉपी है सर पिछले लॉज की। A local government may, on mutually agreed terms and conditions, assign its regulatory powers and functions for enforcement of one or more offences to the Punjab Enforcement and Regulatory Authority, constituted under Punjab Enforcement and Regulation Act 2024. ये सर एक चेंज है जो मतलब हमने यहाँ पे की है कि एग्रीमेंट सर जो उस लॉ में लिखा हुआ है सर पैरा के लॉ में, उसमें भी यही वर्डिंग है सर कि एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट में तय कर लेंगे कि जी किस हद तक उसका रोल होगा, वही सर हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया सर। उसके बाद सर आगे है चैप्टर 29 सर, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी सर प्रोटोटाइप हैं सर, पिछले 10 क्लॉज में सर सेम ही आ रहे हैं सर, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। इसको भी अगर स्किप कर देते हैं सर। सर आगे पार्ट 11 है सर, लोकल गवर्नमेंट सर्विस, चैप्टर 31 सर, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। यहाँ पे सर थोड़ी सी चेंज है तो सर ये हम देख लेते हैं सर। Schedule of establishment of a local government. The local government shall have such number of officers of prescribed service and such number of description of other officers and servants as the secretary, with the approval of minister, may from time to time determine. 174 है Punjab Local Government Service. The local government service continued under Punjab Local Government Act 2022 shall continue and be called Punjab Local Government Service, and their terms and condition of service shall be governed under their respective laws and the rules made thereunder. 2. The employees of Punjab Local Government Service shall be appointed through Punjab Public Service Commission on regular basis. 3. The employees of Punjab Local Government Service shall be liable to serve anywhere within the province for the purpose of the Act. 4. All employees of the Punjab Local Government Service appointed through Public Service Commission against sanctioned post on contract basis prior to commencement of the Act shall stand regularized with immediate effect, subject to fulfillment of codal formalities.
उसके बाद सर 175 सर सर्विस कैडर फॉर एम्प्लॉइज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। इसमें सर 4 में सिर्फ एक ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल अपॉइंटमेंट्स इन लोकल काउंसिल सर्विस इन BS 14 एंड अबव शैल बी मेड थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यानी कमेटियों का रोल नहीं होगा, 14 से ऊपर की तमाम भर्तियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और 176 है कंटिन्यूएशन ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड। ये भी सर पिछले काफ़ी सारे एक्ट्स में सर ये सेम है, कोई चेंज नहीं है सर इसमें भी सर और इससे अगले में भी। अगला सर जो चेंज वाला है सर वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एकेडमी है सर 179 सर। ये पहली दफ़ा सर एकेडमी बन रही है और इसमें सर है थोड़ी सी सर एक और भी इसमें डिपार्टमेंट हमारा जो DG ऑफिस है उसकी तरफ से सर एक आई थी फरमाइश के जो हमारी लाला मूसा वाली एकेडमी है उसको सेपरेट रखें और ये वाली सेपरेट रखें सर, चूँकि उसका स्टेटस है सर अटैच डिपार्टमेंट का, ये बोर्ड के अंडर होती है और ये बोर्ड की मलकियत में है सर। तो उसमें सर हमारा ख्याल है कि दोनों को हम अलग-अलग ही कर दें सर। तो इसको सर हम देखते हैं। देयर शैल बी एन अकेडमी कॉल्ड एज पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर्स सर्वेंट्स एंड इलेक्टेड ऑफिसर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स विद इट्स मेन कैंपस। इसको हमने सर किया है मेन कैंपस लोकेटेड एट लाहौर एंड सब कैंपसेस एज मे बी नोटिफाइड बाय सेक्रेटरी विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर। ये सर हमने ऐड किया है प्रोवाइडेड दैट पंजाब लोकल अकेडमी लाला मूसा शैल कंटिन्यू अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ अटैच डिपार्टमेंट। बेग साहब ये हर डिपार्टमेंट में जो अकेडमीज होती हैं 2 टियर अकेडमीज होती हैं सर। एक ऑफिसर्स के लिए होती है, एक स्टाफ के लिए होती है। आप इसमें पहले तो उसमें कह रहे हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी में कि उसमें स्टाफ भी करेगा और उसमें ऑफिसर्स भी करेंगे, तो फिर ये लाले मूसे वाली का फिर क्या ऑब्जेक्ट रह जाता है पीछे? सर लाला मूसे वाली जो अकेडमी है ना सर ये है अटैच डिपार्टमेंट के अंडर सर। अटैच डिपार्टमेंट हमारा है सर DG लोकल गवर्नमेंट ऑफिस और जो लाहौर वाली अकेडमी है सर ये पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर हम एक नई अकेडमी एक बनेगी सर। तो उसका हमने ये एक मैनेजमेंट बोर्ड सर प्रपोज किया है जो कि उसको रन करेगा चलाएगा सर। जो हमारा ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट अकेडमी लाला मूसा वाली वो DG ऑफिस दोनों का तो दोनों का ना इसके अंदर सर ट्रेनिंग तो सर किसी की भी हो सकती है ना सर, लेकिन उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं सर वो सारे DG ऑफिस के हैं। ठीक है। तो उनकी ये था कि दोनों को अलहदा रखें ताकि उनकी जो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी सीटें हैं वो ना कम हो और अगर आप बोर्ड के अंदर लेके जाएंगे तो फिर वो आएगा। अगर 2 बन गए तो 2 अलहदा होने में भी कोई नहीं सर खर्चा बढ़ जाएगा। इसमें बेग साहब ये जो नहीं दूसरी कहते बनानी है लाहौर नहीं बन गई है सर, बन गई सर, बिल्डिंग बन गई है सर। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट वो फंक्शनल नहीं हुई, वो बिल्डिंग साइट पे आ रहा है तो वो तो लाहौर में भी होने बल्कि बेहतर है लाहौर में जो है ये सर ADP का जो PISIC प्रोग्राम है उसके तहत बनी है और मुकम्मल हो गई है सर। बस ये विद इन फ्यू मंथ्स हमें मिल जानी है। अच्छा सर बेग साहब इसमें मैं ये चाह रहा था कि ये जो आपने अटैच डिपार्टमेंट लिखा है ना ये कहीं डिफाइन नहीं है, नहीं अगर उसका प्रॉपर नाम आ जाए जिसके अंडर है तो ज़्यादा सूटेबल होगा। डिफाइंड है ना सर, आगे डिफाइंड है सर, डेफिनेशन में देख लें तो डिफाइंड है। अटैच में मुझे मिला तो नहीं है दरिया में कहाँ पे आगे सर इसका जो आप देख लें एडमिनिस्ट्रेशन है ऑडिटर जनरल डेफिनेशंस में देखें डेफिनेशन नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। चेक कर लें अगर है तो इट्स ओके, अदरवाइज उसका रेलिवेंट नाम डालेंगे ऐड कर देते हैं। इसका जो बोर्ड ऑफ सर ठीक सर ऐड कर देते हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अकेडमी शैल कंसिस्ट अपॉन फॉलोइंग मेंबर्स: A मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, B सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, C सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, D डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, E up to 2 expert members having 20 years experience in field of local governance as may be nominated by the minister, F a retired officer of local government service not below the rank of BS 19 as may be nominated by the minister, and G director academy। एक सर यहाँ पे थोड़ी सी वो टाइपो एक हो गई हुई है, द मेंबर्स ऑफ क्लॉज F and G of subsection 2 ये होना है सर E and F shall not hold office for a period of more than 3 years। 4 है sir, academy shall consist of such number of officers and officials as may be notified by secretary। 5 the board shall establish a fund to be known as Punjab Local Government Academy Fund which shall vest in academy and to which shall be credited all sums received by the academy including the funds contributed by the board। 6 the academy may accept contributions, donations, grants and gifts in the shape of land, vehicle, equipment or any other item that may facilitate functioning of the academy। 7 the academy shall regulate its business on its own through regulations approved by the board of management। 8 director academy shall be an officer of the prescribed service not below the rank of BS 19 as may be appointed by the secretary।
9. The Director Academy shall be the principal accounting officer of the Academy and shall be responsible for general administration, management and supervision of Academy. 10. Members may receive such honorarium as may be determined by the Chief Minister. Next, sir, है appeals. Any person aggrieved by any order passed by local government or its officers or servants or other functionaries passed under the Act, rules or bylaws may file an appeal to such authority in such manner and within such period as may be prescribed, and order of such authority shall be final. नेक्स्ट भी सर दोबारा पढ़िएगा बार क्या सर ये भी पुराना सेक्शन है सर, हर लॉ में होता है सर। अपील का एक इख्तियार दायरा दिया हुआ है कि अपील हो सकती है, कैसे होनी है सर, उसके रूल्स बनेंगे, सारी डिटेल सर उसमें तय हो जाएंगी कि किसके ऑर्डर के खिलाफ अपील कहाँ पे है। अगला सर है, ये भी प्रोटोटाइप भी हैं सर आगे वाले काफ़ी सारे सर। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स बार्ड, उसके बाद सर इंडेमनिटी ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये भी जनरली होता है सर। जनरल पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सर, ये एक सर आगे स्केजुअल है सर, उसको भी हम कुछ सेक्शन है सर वो आपको दिखा देंगे सर उसमें जो ज़्यादा चेंज है जहाँ पे सर। 184 सर डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय द हेड सर, ये भी प्रोटोटाइप है सर। और ये जरा पढ़ दे 184 पढ़ दूँ सर। A head may delegate any of his powers under the Act or rules or bylaws to any deputy mayor or vice chairperson, member, chief officer or any other officers of the local government, partly or fully, and subject to such restrictions or condition as he may deem fit after approval by the council concerned. 185 all elected officials, chief officers, other officers and servants of the local governments to be public servants, ये भी सर जनरल है। Remuneration and allowances भी सर जनरल सा है। Training of functionaries of local governments, a local government shall in annual budget allocate funds for training of various elected officials and non-elected functionaries of the local governments. 188 bar against employment of elected officials in the local government. अगला रूल सर ये भी जनरल सा है सर, आगे बाईलॉज वाला भी होता ही है सर। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट सर ज़रा इंपॉर्टेंट है सर, वो हम रीड कर लेते हैं सर, क्या ट्रांजिशन कैसे होनी है। 191 सर कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। 1. All defunct local governments and any other office, agency, company or authority established under Punjab Local Government Act 2013 shall continue providing public services in their respective local areas without any interruption till such time new local governments are constituted under the Act. 2. Subject to any other relevant law, all officers and servants of the defunct local government shall continue to discharge their respective duties and exercise their powers with the successor local governments under the Act till such time they are assigned or transferred to any other local government. 3. Nothing in this section shall preclude the government from appropriately reorganizing the defunct local governments or for that matter reorganizing or reassigning any other office or authority established under the Punjab Local Government Act 2013. 192 sir, interim maintenance of offices and authorities to be transferred to local governments under the Act. Pending the transfer of control of office, agency or authority to be transferred to local government under the Act, any public service or duty or other function which at the commencement of the Act is being undertaken or performed by that office, agency or authority shall, notwithstanding any provision of the Act, continue to be undertaken by that office or authority till such time it is transferred to the local government. 193 as fiscal transfers and taxes to continue. 1. On coming into force of the Act, where a local government was receiving any fiscal transfer, grant or compensation in lieu of Zilla tax or octroi, the successor local government shall continue to receive such transfer, grant or compensation. 2. All taxes, cess, fee, toll, rates, rent, fee or other charges which were being charged under any repealed law shall continue to be charged under the Act, and every person liable to pay such tax, cess, fee, toll, rate, rent or fee or other charge shall continue. 180 appeals, any person agreed by any, नहीं sorry ये repeat हो गया जी, पेज दोबारा लगा हुआ। 194 fiscal transfers and budget of succeeding local governments for the first year in office. 1. If for any reason on the date of assumption of office by local government under the Act for the first time no finance commission has been established under the Act, provincial allocable amount and share of transfer to local governments from the provincial allocable amount shall be determined by an interim committee constituted by the government, having such constitution and powers as may be determined by the government. 2. Notwithstanding anything contained in the Act where a local government assumes office under Act during currency of financial year, the estimate of receipt and expenditure of that local government for that year shall cover the remaining period.
195 salaries and emoluments of officers and servants of the local governments during transition. On their allocation, reallocation or transfer under the Act, the salary, pensionary benefits and other emoluments of the officers and servants of the defunct local governments and any other office, agency or authority providing public services before the commencement of the Act shall not be reduced or varied to their detriment. Next 196 repeal and saving. ये भी सर बड़ा जेनेरिक सही है सर, इसको भी अगर कहें तो हम स्किप कर देते हैं सर. आगे सर हमारे स्केजुअल्स हैं, स्केजुअल्स में जो इसके बाद में करेंगे जो फाइनेंस वालों को पिछले वही नहीं आए थे. जी जी अहमद इकबाल साहब, फाइनेंस का जो इशू था आप उसमें काफ़ी आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, सबके थे, बल्कि वो आप डिस्कस करें ज़रा. थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन. सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा सेक्शन 126 पर जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट. ये बहुत अहम सेक्शन है क्योंकि सारा पीएफसी जो है वो इस एक सेक्शन के तहत अवार्ड फाइनल होगा. क्या 126 और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर यही क्योंकि ये सेक्शन इस सेक्शन के तहत लोकल गवर्नमेंट्स को पैसे मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चर की हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो अगर आप वो दे दें PLGA 2013 भी दिखा दें में ये जो सेक्शन थी इसकी 13 वाली है. मैं तो इस पर मैं आपको भेजूं व्हाट्सएप पे. सर अभी आ जाओ, अभी आ जाओ. इस सेक्शन को सर अच्छी तरह स्टडी कर लेना चाहिए क्योंकि इस वक्त इसको जरा करें लाल के अंदर. ये ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि The Punjab Finance Commission shall make recommendations to the government on distribution between government and local governments out of proceeds of provincial consolidated fund into provincial retained amount and a provincial allocable amount to be called the Punjab Finance Commission Award. ये वो अवार्ड है जिसे हम PFC अवार्ड कहते हैं जो हर महीने लोकल गवर्नमेंट्स को जा रहा है. Distribution of provincial allocable amount amongst the local governments as share of each local government, कि उस पैसे में से कितने पैसे किस लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे, वो किस तरह डिवाइड होंगे बिटवीन लोकल गवर्नमेंट्स. तीसरा बड़ा अहम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय एंड ज़िला टैक्स. जो चुंगी टैक्स होता था एक ज़माने में लोकल गवर्नमेंट्स का, बहुत ज़्यादा पैसे होते थे, इसी पे सारी लोकल गवर्नमेंट चलती थी, सबसे बड़ा ऑन सोर्स रेवेन्यू था उनका अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट्स. अब सर हुआ ये था कि 1998 में जब GST लगा था, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और बड़ा एक अजीब सी इन्वायरमेंट बन गई थी इस मुल्क में, तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो फैसला ये हुआ कि इतने ज़्यादा जो टैक्सेस हैं इनको कंसोलिडेट करके लोगों की आसानी के लिए एक टैक्स लगा दिया जाए और फिर जो उस टैक्स के बेनिफिशरीज़ हैं उनमें वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए. और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का डिसीजन था कि जो ज़िला लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से जो सरेंडर नहीं किया गया, इंटीग्रेट किया गया, उनका एक टैक्स GST के अंदर. ठीक है. और ये एग्री हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट GST कलेक्ट करेगी, प्रोविंसेस को देगी, और जो 2% ऑफ GST है वो लोकल गवर्नमेंट्स का टैक्स है जो वो खुद कलेक्ट करते थे, अब फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. अच्छा, अब सिंध गवर्नमेंट इस मामले पे पंजाब
सिंध गवर्नमेंट इस मामले पे हर साल एजिटेट करती है, अपने पैसे भी लेती है और लोकल गवर्नमेंट्स को देती भी है। हमने PLGA 2013 में ये लिखा था कि अवार्ड अलहदा होगा और जो चूंकि पैसे ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स के हैं ही लोकल गवर्नमेंट्स के, ये उनका ओन सोर्स था, ये हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे उनको देके, ये हम उनको एज इट इज़ वापस करेंगे। तो लिखा हुआ था द ग्रांट इन लिeu ऑफ ऑक्ट्रॉय एंड ज़िला टैक्स शैल बी इन एडिशन टू द पंजाब फाइनेंस कमीशन अवार्ड। यानी एक तो अवार्ड है जो हुकूमत ने दे दिया, उसके अलावा GST के पैसे जो आपके पास अमानतन फेडरल गवर्नमेंट रखवाती है इनके, वो भी आपने इनको देने हैं। तो आपने इनको 2 पेमेंट्स करनी है। अब इन रियलिटी क्या हुआ कि PFC अवार्ड बन गया ये चीज़, और PFC अवार्ड के तहत जो पैसे लोकल गवर्नमेंट्स को मिलने थे वो भी पूरी तरह नहीं मिल रहे। पिछले 5 सालों में अगर 100 रुपया लोकल गवर्नमेंट्स को मिलना था तो 52 रुपये उनके पास गए हैं अंडर PFC अवार्ड। 52% कंप्लायंस है PFC की, और जो GST है उसकी 0% कंप्लायंस। फिर एक तसव्वुर आया इमरान खान साहब के दौर में PLGA 2019 में इस पूरे मॉडल से डिविएट करके एक अंदाज़ा लगाया गया कि अगर लोकल गवर्नमेंट से ये हम सारे काम लेना चाह रहे हैं जो उनके डोमेन में हम दे रहे हैं फंक्शंस, तो कितने पैसे उन्हें दरकार होंगे। उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम किया था, शायद बेग साहब के पास रखा हुआ होगा, हम तो उस वक्त गवर्नमेंट में नहीं थे, लेकिन उस वक्त PTI गवर्नमेंट ने कंसल्टेंट्स इंगेज किए, इकोनॉमिस्ट इंगेज किए, और उन्होंने एक फ़िगर, आई थिंक कोई, ये इनको ज़्यादा बेहतर पता है कि वो फिगर 33% था या 30% था, बट इवेंचुअली लॉ में ये आया जी कि पहले 2 साल 28% ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स का, यानी सूबे की कुल आमदन का 28% 2 साल, और फिर तीसरे साल शायद गालिबन 30% जाएगा, 26 और फिर 26। तो ये शुरू 30 से हुआ था, और उस तसव्वुर में उन्होंने कहा कि चलें, क्योंकि आप इतनी सब्सटैंशियल एलोकेशन अब कर रहे हैं जो उनका राइट बनता है, तो इसमें GST भी इंक्लूडेड होगा, ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स उसी में इंक्लूडेड होगा, उस अवार्ड का पार्ट होगा। वो लॉ, वो आपको पता है, ना 2019 का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, ना 2022 का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, ना 2021 का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, वो चलता रहा, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा। हत्ता ये कि जो PLGO जो ऑर्डिनेंस परवेज़ लाई साहब लेके आए उसमें भी उसी तरह था, जो हमजा साहब की गवर्नमेंट में आया उसमें भी उसी तरह था, और फिर जो परवेज़ लाई साहब लॉ लेके आए उसमें भी उसी तरह था। अब हमने उसमें से 28% की शर्त निकाल दी है। अब अपने लॉ पे आ जाए जो अब हम प्रपोज कर रहे हैं, तो उन दोनों में से हमें एक मॉडल रखना चाहिए जी। ये तो नहीं हो सकता कि अब हम वो 28% की भी शर्त निकाल लें और ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स को भी अवार्ड का हिस्सा बना दें। जो ये इसकी सब सेक्शन 2 है, सो अब ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स जो है उसको अवार्ड का हिस्सा बना दिया गया है, या इस पर रिकन्सिडर भी लिखा हुआ है। सो मैं उस वक्त नहीं था कमेटी की मीटिंग में उस दिन, बट मैं लिख के आपको नोट दे के गया था इस पर। मैंने उसमें इसलिए तो बुलाया था डिपार्टमेंट को। तो आपकी प्रपोजल क्या है इसमें? मेरी प्रपोजल ये है कि एक अगर तो हम समझते हैं कि हमने, देखें, जितने मर्जी फंक्शंस दे दें, पावर्स दे दें, अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लोकल गवर्नमेंट्स इनफेक्टिव होंगी। रिसोर्सेज से ही लोकल गवर्नमेंट्स चलेंगी जितनी वेल फंडेड होंगी। तो या तो हम उस बेंचमार्क को वापस ले आएँ 28% और 26%। एक ऑप्शन को कम से कम रखना चाहिए कि ये उनकी एक गारंटीड पेमेंट हो कि ये तो उन्हें मिलना ही मिलना है, उसके अलावा PFC ओवर एंड अबव है। लेकिन फिर ये मसला, आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं, PLGA 13 वाला ज़्यादा बेहतर है या सेकंड ऑप्शन बेहतर है? तो आपका इसमें जो एक्सपीरियंस आप सर PLGA जो जब निशान भाई जब वो लॉ आया था हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट में, तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी। उसमें हमने क्या लिखा था पता? उसमें हमने 26 और 28 रखा था या 28 और 30 रखा था? देखिए 26 और 28 था या 28 और 30 था, एक दो देख ले, मेरे लिए 28 और 30 था, हमने बढ़ा दिया था। 2022 में 2 एक्ट आए थे, एक आया था जून, मेरे पास है वो लॉ, लेकिन
उसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी और हमने ये भी फैसला किया था कि इतने ज़्यादा अगर आप पैसे दे रहे हैं तो इस 26% या 28% का 10% फिक्स हो जाना चाहिए कि वो बेसिक टीयर यूनियन काउंसिल को जाएगा। वो अभी भी हम रख रहे हैं शायद क्लॉज। उसमें हमने कैलकुलेशन की है, हमने की थी कि एक रफ सी कैलकुलेशन की थी कि लेट्स से अगर 7 लाख के ऊपर की जाए, हमने वैसे वो परसेंटेज वाइज नहीं की, हम एक रफ सी कैलकुलेशन कर रहे थे, आगे भी हमने जो डिस्कशन हो रही थी तो उसमें कोई 7 लाख एक मिनिमम अगर हो पर यूसी कितना अमाउंट वाइज हमने की थी 7 लाख। हाँ, तो उनके खर्चे उर्चे निकाल के उससे ये था कि मैक्सिमम जो खर्चे हो सकते हैं ना किसी भी यूसी में 2 लाख हो सकते हैं, 1.5 से 2 लाख, तो एटलीस्ट 5 लाख अब मंथ, मतलब ये है कि 60 लाख ये उसमें उनके पास एक। सर उस पर मेरी सबमिशन ये होगी कि 3 लाख तो हम 2017 में दे रहे थे, आज रुपी तकरीबन 3 टाइम्स डिवैल्यू हो गया। सो वो अगर आप सिर्फ उसको टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट करें तो वो कम से कम 9 लाख रुपया होगा जो आज की हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। उस वक्त 1.5 लाख दे रहे थे, अभी भी वो अमाउंट रेक्टिफाई नहीं हो रही, ईयर ऑन ईयर चेंज अभी हो रहा है ना। इसमें हमारी उस वक्त देखें, उस वक्त जो पैसे दे दिए जाते थे उन पे फिक्स खर्चे वाला कौन से थे, सेक्रेटरी की तनख्वाह और उसके बाद चौकीदार या नायब कासिद की तनख्वाह, बाकी यूटिलिटीज होती थी। 1.5 लाख डेवलपमेंट था, 1.5 लाख नॉन डेवलपमेंट। सर जो डेवलपमेंट है यूनियन काउंसिल लेवल पे, चूँकि हमने कोई सब इंजीनियर तो रखा नहीं सर, तो उन्होंने तो लंबी चौड़ी डेवलपमेंट तो करानी नहीं ना सर, वो तो अपने अभी जो हमने अभी कैलकुलेशन की है ना वो तनख्वाह, और अगर इसी पे देखा जाए और बाकी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का बजट भी रखा जाए तो 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता, 5 लाख का क्वेश्चन बचता है। पहले के अंदर 3 सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, अब 1 सेक्रेटरी होगा। ये जो था ना जी 2022 के अंदर हमने कैलकुलेशन की थी 26% GRR इसका 10% कितना का 10% एट द रेट ऑफ लेट से 4000 यूसीज जो 2013 में बनी थी, कि अगर उस हिसाब से यूनियन काउंसिल्स दोबारा बनती हैं तो एज़ फार एज़ माई मेमोरी सर्व्स मी वो तकरीबन 1.1 मिलियन के करीब था, 1 मिलियन के अभी करीब यहीं था पे पर आ मंथ। जाए। अब तकरीबन जो यूसीज है ना, हमने ये कैलकुलेट किया अराउंड 6,500 तो उस पे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट अमाउंट आप वाली बन जाएगी। बट आप उसमें जो मैट्रिक दिया हुआ था ना, अभी तो कोई आपने बेसलाइन ही एस्टैब्लिश की, ये तो 26% तो बेसलाइन ही मिनिमम है। अब हमने नॉमिनी दी भी तो कल को अवार्ड इससे कम भी हो सकता है। नहीं, मेरा कहने का मकसद जब वो उस पर आते हैं, पहले यूनियन काउंसिल का जो आपने निकाला है ना 1.1 मिलियन था आउट ऑफ, हाँ बिल्कुल 4000, उस वजह हमने कहा 4000 यूसीज के ऊपर, अगर उसी को हम 6500 यूसीज पे ले जाएं, जो हमारी रफ से कैलकुलेशन इतनी बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो 7 लाख बनेगा, ऑलमोस्ट वही बनता है, फिर 10% करीब ही बनता है, 10.5 हो जाएगा, ऑलमोस्ट उतना ही बनता है। लेकिन इसमें सॉरी 1 पॉइंट नहीं, क्योंकि ये 160% यूसीज हो जाएंगी ना उसकी। मैं इसमें ये है कि जो बात हम लोग बार बार करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर की या इनको ऑटोनमस बॉडीज़ बनाने की, तो अगर दोबारा यही सिलसिला रहना है कि इन्होंने जिस तरह जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं वो मरहूने मिन्नत रहेंगी, जो ये PFC का अवार्ड है, इसी तरह अगर नीचे जो हमारी यूनियन काउंसिल लेवल पे एक चेयरमैन बनता है या वो इतने वोट लेके लोगों की नुमाइंदगी करता है और इवन उसके पास कोई अपना कोई स्वाबदीदी इख्तियार ही नहीं है, स्वाबदीदी उसमें उसके पास चीज़ ही नहीं है, तो व्हाट इज़ द मेन आई वुड से कि क्या मतलब वेयर वी आर गोइंग, वी आर जस्ट स्टैंडिंग ओवर, जहाँ पिछले कोई 40-50 या 30-35-40 साल से जो लेजिस्लेशन हो रही है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो इफ़ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द टाइम, तो हमें कम से कम इस लेजिस्लेशन में भी थोड़ा बहुत आगे ज़रूर जाना चाहिए। मैं बल्कि कहीं अहमद भाई पढ़ रहा था, आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में तो उन्होंने लिस्ट सिस्टम किया हुआ है
जिस तरह फेडरल की अपनी लिस्ट है, प्रोविंशियल की अपनी लिस्ट है, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है जिसमें उनका लोकल गवर्नमेंट एक लिस्ट है कि जिसमें उनके फंक्शंस हैं, व्हाट दे कैन परफॉर्म एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फेडरेशन और द प्रोविंशियल आइन में है। तो मतलब ठीक है, हमें पता है कि शायद उस तरह एकदम हम कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो हम इन बॉडीज़ को ऑटोनमस बनाएं। तीन थां तुसी उन्होंने क्या वोट लैके तुसी जितना है, पहले उन्होंने नीचे से वोट लेने हैं, फिर उन्होंने माइनॉरिटी और वो जो आपने रिजर्व सीट्स लेनी है, फिर उन्होंने अपने काउंसलर से वोट लेने हैं। इतने वोट लेके जब उन बेचारों ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनना है, उसके बाद हम उन्हें सिर्फ ये कहें कि आप अपने पीएन की तनख्वाह दे सकते हैं या आप तो अपने ये सेक्रेटरी की, तो ये तो किसी ने नहीं कहा। आप देखें, बात ये है कि तैयाब साहब बात वो करें जो किसी ने, यहाँ पे तो बात हो रही है उनको फंड्स बढ़ाने की, और ये जो अहमद साहब ने बात की है, मैं भी, हम दोनों की बात आलमोस्ट एक ही है। जो वो हमने जो आपके सामने कैलकुलेशन रखी है, वैसे आप जो कोई अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करें यार। तो हमने तो वही बात की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम तो वही बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10% ही बनता है। हम वही हिसाब लगा रहे थे कि जो उस वक्त आउट ऑफ 4000 यूनियन काउंसिल्स बना था और उसको 6,500 पे चले जाएं, तो वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन ऑलमोस्ट बन रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमने वही बात की है, तो आप इसको अप्रिशिएट करें। हम तो उनके रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। हमने ये भी बताया कि हमने भी इसका भी अंदाज़ा लगाया है कि उनके जो खर्चे हैं, उन खर्चे के बाद भी उनके पास जो अमाउंट बची थी वो भी आपके सामने रखी है। आपने बड़ी अच्छी हाईटी कराई है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सर गुजारिश ये है कि प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छी चीज़ होगी उसे हम डेफिनेटली अप्रिशिएट मान लो ना। नहीं मानने हैं, क्या तो है, बड़ा अच्छा तुसी हाईटी कराई है। लेकिन सर मसला ये है कि मतलब देखें 6 लाख कर लें, 7 लाख कर लें, 9 लाख कर लें, मतलब आज आप किसी की अगर एक फॉर एग्जांपल किसी इलाके का यूनियन काउंसिल है, उसका एक कोई वो अपना उसका कोई एक वोटर आ जाता है, जी मेरा ये सीवरेज लाइन बैठ गई है, या एकदम कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो आपको फ़ौरन हल करवाने वाले होते हैं। तो अगर उसमें भी उसका इख्तियार नहीं है, वो अपना उसके पास थोड़ी बहुत रूम नहीं है फंड्स के अंदर, ये आपने क्यों सोच लिया अहमद भाई कह रहे हैं तो अच्छी बात। पैसे इसके अलावा तहसीलों में पैसे नहीं होंगे, वहाँ पे पैसे पैसे तो सर होंगे, लेकिन वो फिर अपनी वो चेयरमैन अपनी यूज़ ही नहीं कर सकेगा, तो उसका फ़ायदा तो नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑटोनमस बॉडीज़ बने, बस नहीं, ये बस मेरा कहने का मसला है। साहब मेरी आप सुने, आपकी बात बड़ी सही है। जब हम ट्रेड यूनियंस होते थे, हमारा नारा होता था कि कम से कम जो है ना तनख्वाह वो 1 तोला सोना होना चाहिए। अब मेरे समेत किसी ट्रेड यूनियंस ने अब 1 तोला सोना नहीं, आपको अपने ड्राइवर को फिर 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह देनी पड़ेगी, क्योंकि मुल्क उस हालत में नहीं है। अब इंडिया की आपने मिसाल दी ना, उनका जो डिफेंस बजट है हमसे पता नहीं कितने 100, 600 के 700 गुना ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अब अभी जल्दी कोई 2 महीने हुए हैं, आपने उसका रिजल्ट देख लिया। बात है कि विल की, हमारी विल है कि इसको मजबूत की जाए। हमारे मुल्क में जो माशी हालात है उसके हिसाब से भी चलें। फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंस गवर्नमेंट, उनको भी IMF के कर्ज़ों में कई जगह वो बंधे होते हैं, वरना कोई भी हुकूमत हो, किसी पार्टी को वो नहीं चाहेगा कि आवाम जो है ना वो सफ़र करे। हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी क्लियर करें ना, ये क्या बेटा इसको आपको कहा है तो इसको कर लें ज़रा, ताकि फिर हम करते रहेंगे। जी सर, so with the due permission, I would like to submit जो भी आपने डिस्कशन की on fixing the amounts and जिस तरह से आप लॉ में प्रेजेंट किया गया है। अहमद साहब ज़रा सुनो। सर उसमें हमारी सबमिशन ये है कि एज इट हैज़ ऑलरेडी बिन डिफाइंड इन द एक्ट के प्रोविंशियल जो है आपका फाइनेंस कमीशन, वो किस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफाइन करेगा, एज इट इज़ डन इन NSC एज वेल, कि उसमें भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन की जाती है। सेम गोज़ फॉर PFC इन द प्रोविंसेस। तो दिस शुड बी आई थिंक देयर मैंडेट कि वो डिफ़ाइन करें। बेशक सर ने जिस तरह बात की कि जी द अमाउंट इज़ क्वाइट लेस, और ये ना हो कि अगर हम कोई अमाउंट फिक्स नहीं करें और उससे भी लेस हो जाए, तो इन दैट केस आई वुड से कि PFC में भी ऑल द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर फाइनेंस, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द कमेटी, सो दे कैन डिसाइड इन द कमेटी वट एवर परसेंटेज इज़ टू बी फिक्स्ड एंड हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इज़ टू बी मेड। सो इट कैन, अभी जैसे करंटली जो है नेट कंसोलिडेटेड फंड का हमारा 37.5% है, विच इज़ the allocable amount. So it can be even higher if we 37.5%, sir. So sir, it can be even higher if the PFC decides कि जी हमने इसको
नहीं अभी इस वक्त आप कह रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जो एलोकेबल अमाउंट है, जो एलोकेशन की गई है, वो है 37.5% ऑफ नेट कंसोलिडेटेड नेट पीसीएफ कहते हैं सर उसको, उसका 37.5% है सर। 37.5%। जी जी 62.5% रिटेन अमाउंट। पीएफसी ये पुराना वाला है सर। तो ये फॉर्मूला पीएफसी की मैंडेट है, दे कैन डिफाइन द फॉर्मूला अगेन। आप आपको क्योंकि इसमें सर जैसा मैडम कह रही थी, आई थिंक कि उसमें क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सबकी आप लोग की भी होगी उसमें और लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस की भी होगी। सर पिछली दफ़ा उसके टेक्निकल कमेटी के हिस्सा भी थे और उनने काफ़ी इनपुट भी दी थी। इस पे सारा डाटा कंसोलिडेट किया जाएगा, जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि पैसे कितने देने चाहिए। अगर उस वक्त पीएफसी समझता है कि इसको बढ़ा के लेट्स से 30% या 35% करना है, तो ये मैंडेट उनका है, बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिसर्च बहुत की जाती है कि इस वक्त लेट्स से पॉवर्टी लेवल्स क्या हैं, पॉपुलेशन क्या है। जैसा आपने बताया कि यूसीस का बढ़ा के 7 लाख करते हैं तो वो कवर कर रहा है वो ग्राउंड, या 8 लाख करते हैं। तो ये टेक्निकल कमेटी ने यही डाटा देना है पीएफसी के फोरम को और वो डिसाइड कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। हमने सिर्फ जिस पे इनपुट फाइनेंस डिपार्टमेंट दी थी कि इसको हार्डवायर ना करें कानून के अंदर ही, फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है 93A और 126 के अंदर। आप कहते हैं कि इसको आप कोई एक फिगर ना लिखें। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि ये सारा कुछ क्रिएशन है हमारी, ये हम बना रहे हैं, पीएफसी भी हम बना के दे रहे हैं। एक फोरम आप क्रिएट कर रहे हैं और आप उस फोरम के लिए एक मिनिमम बेसलाइन सेट कर रहे हैं कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते। ये एक प्रोटेक्शन है जो कम से कम हम आज लोकल गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं। आपने इसको ये देखा होगा, 37.5% की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको, क्योंकि मैंने नहीं आपने क्या है जो आप कह रहे हैं वो डिफरेंट है। वो ये प्रेजेंटेशन होगी इनके पास, उसकी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ गलत है। वो तो एक्चुअली एक बहुत जो आप ऐसे ही उसको ना खोलें, वो एक बेग साहब को भी पता है, वो एक और फिर कैन ऑफ वर्म्स है। मेरा सवाल ये है, इसमें एक चीज़ अगर वो भी नहीं मिल रहा ना, उसका आधा मिल रहा है, उस अवार्ड का भी आधा मिल रहा है। नहीं, वो क्या 37.5 का पूछे अमाउंट कितनी डिबेटेबल है सर। ये कि द पीएफसी उसमें शामिल क्या किया सर, उसके अंदर मेन हेड्स बता देता हूँ। हर साल चेंज, मैं आपको तुम्हारा बड़ा वो किधर है, लैपटॉप किधर है यार, लैपटॉप लाओ। आप एक छोटी कमेटी भी इस पे बनाते हैं अगर साहब मैं ना पाना उस कमेटी से, मैं जो कहना नहीं देखे ना, मसला तो हम पॉजिटिव हल करने जा रहे हैं ना। कमेटी बना दें आपकी, 2 दिन ले, आप 2-3 दिन ले ना इसको हल। अगर इसमें कैलकुलेशन है ना, हमारी नहीं है इसमें मायराना की। कब नहीं, आप अगर कल का दिन भी थोड़ा सा करके इस पे एक वे उस तरह का एक प्लान, ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर में सारी चीज़ें इस पे ये है कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा 2-4 घंटे लगा के, तो कमेटी को एक आप डूएबल प्रपोजल, फाइनेंस वाले भी बैठे हैं, अगर आप मुनासिब समझें तो आज ही अगर 2 घंटे इनके साथ अभी बैठ के इसको आप देख के तो एक प्रपोजल बना के हमें दे दें। अगर आप एक्सपेक्शन पे भी होंगे तो अगर आपको वीडियो लिंक पे कोई आधा घंटा निकाल लें उस टाइम पे। तैयारी तो आपकी काफ़ी हुई है, आप 2 दिन तो हैं आपके पास, बैठ के कर लें। तो अगर आज अभी भी अगर आप थोड़ा टाइम लगा लें इनके साथ, आपको तो आपकी वर्किंग्स पे है, उनके पास भी डाटा है, तो आपके साथ थोड़ी देर के लिए अपने उनको बैठ कर कर लें। चलिए कल कर लें, कितने बजे? पीएससी को आगे पीछे इसके बाद कर लें 2 बजे। अगर 2 बजे कल आप टाइम निकाल के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल 2 बजे बेग साहब आप भी आ जाइएगा ना। बेग साहब ने तो इंज लग, बेग साहब समझो मैंबर हो गए पार्लियामेंट के, उन्हें रोज़ ही आना होता है, कोई आना है। बेग साहब आप भी आ जाइएगा, लेकिन आप भी फिर कल लाजमी आ जाइएगा क्योंकि अहमद साहब ने चले जाना परसों, तो आप साथ किसी और मेंबर को आपने लेना तो ले लें उसके लिए। तो एक शाह साहब भी चले गए, उनको अगर हुरम साहब हो जाए, कासिम साहब हो जाए, देख आप ऐसा करें ना, आप इसको देख लें,
हैं? नहीं ले लो जनाब हजूर। कितने नहीं ये मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी अच्छा भट्टी साहब भी आए हैं सर आप क्या इसके ऊपर एक वर्किंग करें, वो आनी तो और आप है ना इसी भाई हाउस तो में मैं आनी है पहचान ना। वो जो आप इसके ऊपर कुछ डूएबल सा एक फार्मूला निकालें आप अगर बैठ 3 बंदों की कमेटी बना लेना है तो कौन से आपने 2 लेने हैं 3 ये चल सब कमेटी बननी है। मेरा ख्याल है कि अहमद साहब जो कोई अहमद साहब ਨੂੰ कह देने चुन लें जो भी प्रपोजल बनना है अहमद साहब आना इत्थे ही है उन्हें इत्थे नहीं होना, इत्थे आप अगले मीटिंग ये पेश कर दांगे क्या जनाब है कल कहते हैं कि कर लो मीटिंग कल अगली मीटिंग ना कल 2 बजे का टाइम रखते हैं। भावें अहमद साहब कल्ले कर दें भावें नाल किसी ने लेना दो अहमद साहब आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। नहीं को आप खुद डिसाइड करें जिसको बुलाना है आप नहीं आप डिसाइड करें मेरा ख्याल है बिरक साहब को लाजमी कर दें साथ दोनों को बिरक साहब ये और तियाब साहब बाकी भी हो गए बाकी जिसको भी आप करना चाहे तियाब साहब को किसी को बुलाना कमेटी नोटिफाई कर रहा हूं मैं ही कर रहे हैं ना कि एक तो बिरक साहब हो गए एक दूसरी हो गए फाइनेंस बना देना 3-4 लोगों के बाद जितने हो गए कितने लोग होंगे एक दो तीन आपने एक दिन में करना है जितनी लंबी कमेटी उतना लंबा अब टाइम शॉर्ट है आप अपनी आप टेक्निकली प्रपोजल बनाएंगे ना तो हम उसे 2 दिन डिस्कशन पे कर लें। आप एक बना लेना इसलिए मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग होंगे ना आपको टाइम हम तो आपसे प्रपोजल पूरी कौन सी आप कितने जाना एक से खुद करके ये कौन सा अब फाइनल फौरी हो जाना है आप एक बना लें डिपार्टमेंट दोनों को लेके करके पूरा मेरे साथ हो जाए आप दोनों बैठे करके फिर यहाँ पे डिस्कशन हो जाती है। कल PSC 3 की मीटिंग है तो कल अगर आप अगर आप लोग डेटा ले आए सारे तो फिर हम ऊपर ही करके फिर 2 बजे अगर आप कर रहे हैं 4 बजे तक आप किसी न किसी जगह पर पहुँच जाएंगे। सर पीएससी ज़रा शॉर्ट कर लें थोड़ी सी 12 बजे का रख लें सर एफडी भी 12 बजे आ जाए सर पीएससी कल है भी लाहौर सिर्फ है सर सिर्फ ना तो जल्दी हो जाना वो हेल्थ का भी है अच्छा आपने हेल्थ भी रखा हुआ है 2 बजे तक हम फिर अहमद साहब इसको PSC वाला आगे ले जाए सर PSC बहुत अच्छा फिर ऐसा कर PSC 10 से 12 कर लें 10 से 12 PSC कर लें 10 से 12 तो अफसरान भी नहीं अच्छा उसके सुबह 11 बजे कर लें आ जाएंगे 10 बजे कर लेंगे 2 बजे से क्या फर्क पड़ता है 2 बजे कर लेंगे टाइम शॉर्ट होना ये मैं इसी कह रहा हूँ 2 बजे कर लेंगे नहीं चले कोशिश करें मुश्किल काम है आप होंगे बिरक साहब होंगे 2 तीसरे आप बंदे देख लें अपने जिसको भी आपने लेने मैं इसे कह रहा हूँ ताकि इस पर वहाँ पे लंबी डिबेट की बजाय एक फार्मूला बना के या जो भी डूएबल सी चीज़ बना के अगली मीटिंग में आप दे देंगे चेयरमैन साहब को चेयरमैन साहब इधर हम लोग पेश करके सारे बैठे होंगे उस पर डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करना बड़ी आसान होगा उसमें प्लस माइनस करना आसान होगा इधर का आप कोई ना कोई एक बेस लाइन सेट कर दें चीज़ें सेट कर दें उसके ऊपर हम कर देंगे डिस्कशन ठीक है देखिए ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हम PFC का एजेंडा पिछले 3-4 महीने से कैरी फॉरवर्ड आप उसमें भी देख रहे हैं हमारे मेंबर्स जो हैं वो बड़े वेल वर्स्ड हैं वहाँ ऑडिट भी वेल वर्स्ड है ये भी आ जाएंगे तो वी विल जो 4-5 लोग हैं हम करके ये होनी है टेक्निकल आपकी एक गुफ्तगू इसमें पॉलिटिकल गुफ्तगू कम होनी है पॉलिटिकल आप अकेले अगर कर लें ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद जब पॉलिटिकल गुफ्तगू हम करना इस पे हाउस पे करना ही करना है यहाँ पे करके दे देंगे आपको टेक्निकल जो हैं वो बताएं जी बस पॉलिटिकल डिस्कशन ना उसमें दो बजे कल 2 बजे ये कर लें अहमद इकबाल साहब ने ठीक है कल 2 बजे आप करके फिर हमें कोई बना दीजिए हाँ बस ठीक है थैंक यू